السلام علیکم دوستو، اپنے چینل ارہم سٹوریز پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ میرا نام فاریہ ہے، میری عمر 25 سال ہے، میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میری شادی کو ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ میرے سسر نے مجھے آواز دے کر پکارا۔ میرے سسرال میں بس میرے سسر ہی رہتے تھے اور میرے شوہر نے شادی کی رات ہی مجھے خاص تاکید کی تھی کہ کبھی بھی کسی بھی بات سے انکار مت کرنا، ورنہ وہ غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ اور اس دن سے میں بھی یہی دیکھ رہی تھی، جب بھی وہ میرے شوہر احمر کو ایک آواز دیتے، میرے شوہر کی تو جیسے رنگت ہی اڑ جاتی، حواس اڑنے لگتے اور فوراً سے کمرے سے باہر نکل جاتے۔ اپنے شوہر کی بدحواسی دیکھ کر میرے دل میں بھی سسر کا بڑا روب تھا۔ غصے میں تو واقعی رہتے تھے۔ شادی کو 2 دن ہی گزرے تھے، تیسرا دن تھا کہ جب صبح ہی احمد نے مجھ سے کہا کہ آج ہم کہیں گھومنے جاتے ہیں۔ میں بھی خوش تھی، لیکن اسی وقت میرے سسر نے احمد کو پکارا تو وہ فوراً کمرے سے باہر چلا گیا۔ باہر سے مجھے اپنے سسر کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کہہ رہے تھے، 2 دن شادی کے ہنگامے میں گزار کر تمہیں احساس بھی ہے کہ فیکٹری میں تمہارے نہ ہونے کی وجہ سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور آج پھر تم چھٹی کر کے بیٹھ گئے ہو۔ ابھی کے ابھی فیکٹری پہنچو، تمام ورکر کے سر پر کھڑے ہو تاکہ وہ ٹھیک سے کام کریں۔ تمہاری شادی میں نے اس لیے نہیں کی تھی کہ تم کمرے میں گھس کر بیٹھے رہو اور اپنی بیوی سے بھی کہو کچن کی ذمہ داری سنبھالے۔ یہاں کوئی اور عورت تو ہے نہیں جو اس کے ناز نخرے اٹھائے گی۔ یہ سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا تھا۔ ابھی 2 دن ہی تو ہوئے تھے ہماری شادی کو، اور ان 2 دنوں میں بھی ناشتہ میں ہی بنا کر دے رہی تھی، جس پر میرے سسر کئی نقص نکال چکے تھے۔ لیکن احمد نے مجھے بڑے پیار محبت سے سمجھایا کہ ابا کی بات کا برا مت منانا۔ 2 دن تو میں ایسی ششپنج میں مبتلا تھی کہ سسر کا مزاج آخر ایسا کیوں ہے، لیکن آج جو شور شرابہ میرے سسر نے مچایا تھا، میں تو مزید گھبرا کے رہ گئی تھی۔ احمد جب کمرے میں داخل ہوئے تو ان کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ کہنے لگے، معذرت چاہتا ہوں، مجھے فیکٹری جانا پڑے گا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، کام پہلے ہے، گھومنے ہم پھر کبھی چلے جائیں گے۔ میں نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ احمد تو فوراً فیکٹری چلا گیا۔ میں کچن میں آ کر بے دلی سے برتن دھونے لگی۔ شادی کے تیسرے دن میں نے ہی کھانا بھی بنایا، گھر کے سارے کام بھی کیے۔ میرے سسر نے ملازمہ کو جواب دے دیا، کہتے تھے کہ جب بہو گھر آ گئی ہے تو گھر کی صفائی بھی وہی کرے گی۔ میں نے پورے گھر کی صفائی کر لی۔ تھک ہار کر اب میں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جانے لگی تو میرے سسر نے مجھے آواز دی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں نے سر پر اچھی طرح سے دوپٹہ اوڑھا، لیکن دوپٹہ ریشمی تھا، اس لیے جب اپنے سسر کے کمرے میں گئی تو میں نے پوچھا، جی ابو جی، کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ انہوں نے مجھے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا، پھر بڑے عجیب انداز سے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہنے لگے، مجھے دودھ پینا ہے۔ یہ سن کر مجھے سب سے پہلے اپنے دوپٹے کا خیال آیا، کیونکہ میرے سینے سے دوپٹہ سرک چکا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے اپنے سسر کی یہ حرکت عجیب لگی تھی۔ سسر تو باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور باپ کبھی بھی بیٹیوں کو سر سے پاؤں تک نہیں دیکھتا۔ میں فوراً سے کچن میں آ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے اب بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے فریج کھولا، دودھ کا گلاس بھر کے دوپٹہ اچھی طرح سے خود پر لپیٹ کر اپنے سسر کے کمرے میں آ گئی۔ سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے سے باہر جاتی، میرے سسر مجھ سے کہنے لگے کہ تھوڑی دیر میرے پاس بھی بیٹھ کر بات کر لیا کرو، گھر میں اب تمہارے علاوہ تو کوئی ہوتا نہیں، میں پورا دن اکیلا بیٹھ کر بور ہو جاتا ہوں۔ یہ سن کر میں پریشان سی ہو گئی۔ میرے سسر کے کمرے میں صرف ایک بیڈ تھا، ایک الماری تھی، بیٹھنے کے لیے ایک الگ سے کوئی کرسی نہیں تھی، اس لیے مجھے مجبوراً بیڈ کے کنارے پر ہی بیٹھنا پڑا۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دودھ کا گلاس پکڑ کر منہ کو لگایا تو فوراً سے پیچھے ہٹا لیا۔ کہنے لگے، اتنا ٹھنڈا دودھ یہ میں نہیں پی سکتا، مجھے تو گرم گرم دودھ پسند ہے۔ یہ کہتے ہوئے پھر اس کی نظریں میرے چہرے سے ہوتی ہوئی میرے پورے وجود پر سفر کرنے لگی۔ ان کی نظروں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں الجھن کا شکار ہونے لگی۔ میرے ہاتھوں میں تری سے اترنے لگی، چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ کہنے لگے، جاؤ اسے گرم کر کے لا دو۔ میں نے دودھ کا گلاس پکڑا اور کمرے سے باہر بھاگ کھڑی ہوئی۔ ویسے تو 2 دن سے میرے سسر بڑے ہی غصے میں بات کرتے دکھائی دے رہے تھے جب میرے شوہر گھر میں ہوتے تھے، تو لیکن آج تو ان کا لہجہ بڑا ہی دھیما تھا۔
लग नहीं रहा था ये मेरे वही ससुर है जो 2 दिन से अहमद से चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे थे और गुस्से से अहमद से बात कर रहे थे, उन्हें डांट रहे थे। मैंने दूध को पतीली में डालकर जरा सा गर्म किया और फिर से गिलास में डालकर अपने ससुर के पास आ गई। जैसे ही मैंने गिलास उनके आगे बढ़ाया, उन्होंने गिलास के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे वजूद में करंट सा लगा। मैंने फौरन घबरा कर हाथ पीछे करना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो कहने लगे, अरे बाहर कहाँ जा रही हो, यहाँ बैठो ना मेरे पास, मुझसे बातें किया करो। ये तन्हाई का नाक तो मुझे अब और भी ज्यादा डसने लगा है। ये कहकर उन्होंने ठंडी आह भरी थी। मुझे तो उनकी यह बात सुनकर अजीब सा महसूस होने लगा था। फिर कहने लगे, तुमने अपनी शादी के अगले रोज फिरोजी रंग का फैंसी जोड़ा पहना था, बड़ा जच रहा था तुम पर। आज शाम को वही पहन लेना। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। ये फरमाइश अहमद को मुझसे करनी चाहिए थी, ना कि मेरे ससुर को। अब तो मेरे ससुर ने रोज का ही तमाशा पकड़ लिया था। जब अहमद फैक्ट्री जाता, मेरे ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेते, मुझे अजीब नजरों से देखते, बार बार अपने खुश होठों पर जुबान फेरने लगते, फिर कहते मुझे दूध पीना है, मुझे दूध ला कर दो। मैं दूध का गिलास लेकर जाती तो मेरा हाथ पकड़ लेते, कहते मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। मैं भला क्या कर सकती थी। मैं काम के बहाने बनाने लगती कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं। असल में मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। अब मेरा दिल बेचैन सा होने लगा था। सोच रही थी तो मुझे अहमद से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे करती। वो तो अपने बाप के सामने कांपता था, एक लफ्ज नहीं कहता था, सर झुकाए अब्बा जी करता रहता था। मैं किचन में काम कर रही थी कि मेरे ससुर अचानक से किचन में आ गए और जो कुछ मेरे साथ किया, मैं अपने इज्जत बचाकर अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, बेड पर बैठ गई। बदहवासी मुझ पर बुरी तरह से सवार थी। मेरा पूरा वजूद लरस रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा ससुर मेरे साथ ऐसे भी कोई हरकत कर सकता है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोचती थी कि मैं अहमद से बात करूंगी। मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया, अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। कई बार मेरे ससुर मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा चुके थे कि उन्हें भूख लगी है, खाना दे दो, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया। मेरी जगह कोई भी होती तो यही सब कुछ करती जो मैंने किया था। रात को मेरा दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। अहमद थे। कहने लगे, फारिया दरवाजा खोलो, ये क्या बदतमीजी है, क्यों तुमने सुबह से दरवाजा बंद किया है, कमरे में बैठी हुई हो। अहमद की आवाज सुनकर मैंने दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो दोनों बाप बेटा मुझे गुस्से से देख रहे थे। अहमद कहने लगा, तुम्हें जरा भी हया है, मेरा बाप सुबह से भूखा बैठा है और तुमने उन्हें रोटी तक नहीं दी। उन्हें शुगर का मर्ज है, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। मैंने कहा, मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, बेहतर है कि आप कोई और इंतजाम कर लें। मेरा ये कहना था कि अहमद गुस्से से भड़क उठा। कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है। पीछे से मेरा ससुर कहने लगा, देख रहे हो तुम भी, अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए से आए हुए और उसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए। मुझे पहले ही पता था कि ये लड़कियां शादी के बाद क्या करती हैं और अलग होने के ख्वाब पहले ही आंखों में सजा लेती हैं। अहमद कहने लगा, कि आज तो तुमने ये बात कह दी, आइंदा अगर कही तो हाथ में तलाकनामा पकड़ाकर तुम्हें रुखसत कर दूंगा। यह सुनना था कि मेरा रंग उड़ गया। मेरे वालिद की पहले 5 बेटियां थी। वो सफेद पोश इंसान थे। बड़ी मुश्किल से जहेज इकट्ठा करके एक एक बेटी की शादी कर रहे थे। मेरी माँ भी मुझे रुखसती के वक्त कह चुकी थी कि कभी भी लड़कर हमारे घर मत आना, अपने शोहर और ससुर की हर बात मानना, अपने घर बसाने की कोशिश करना। लेकिन जो कुछ मेरा ससुर चाहता था वो मैं नहीं कर सकती थी। इसकी गलत हरकतें, उसकी बेबाक गुस्ताखियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उस वक्त अहमद जितने गुस्से में थे, मैं उन्हें सच बताती तो यकीनन मुझे ही झूठा कहते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, जाकर बेड पर बैठ गई। मेरे ससुर कहने लगे, अहमद इसको आखिरी बार समझा दो, इसका दिमाग दुरुस्त कर दो, वरना मैं भी फिर इसकी माँ से जाकर बात करूंगा, उसके बाप से कहूंगा कि संभाले अपनी बेटी को। ये कहकर वो गुस्से से चले गए। मैंने एक दूसरी नजर अपने ससुर पर डाली थी। अहमद कहने लगे, मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम्हारे सर पे कौन से 10 अपराध का बोझ है ये तुमसे संभाला नहीं जाता? अरे मेरा एक ही तो बाप है, ना माँ है, ना कोई बहन भाई। ऐसी जिंदगी की तो लड़कियां ख्वाहिश करती हैं जहाँ उनके सर पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा कि काश मेरी सास और देवर और नंदे होती तो आज मैं इन मसाइल से ना गुजर रही होती जिनसे अब गुजर रही हूँ।
मेरी बात पर वो मुझे गुस्से से देखने लगे, कहने लगे, ऐसे कौन से मसले पैदा कर दिए हैं मेरे बाप ने तुम्हारे सर पर, और सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो देनी पड़ती है, वो भी तुम्हें बोझ लग रही है। देखो, मैं अपने घर में फसाद नहीं चाहता। मैं फैक्ट्री से थका हारा आता हूँ और आते ही ये सब कुछ नहीं देख सकता। मुझे सुकून चाहिए। मैंने शादी सुकून हासिल करने के लिए की है, ना कि ये फसाद देखता फिरूं। मैंने कहा, अहमद, ऐसा करो कि अपने बाप की शादी करा दो। मेरा ये कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ अहमद ने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बात करते हुए? ये मेरे बाप की उम्र है शादी की। मेरे बाप की 2 वक्त की रोटी की वजह से बाप की शादी करवा दें? मैंने कहा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो अहमद। वो कहने लगा, ये कौन सी बात है जिसे मैं समझूं? बेतुकी सी बात है कि मेरे बाप की उम्र 70 साल है, कब्र में पाँव है, शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, और तुम चाहती हो इस उम्र में मेरा बाप एक औरत की जिम्मेदारी संभाले? अब मैंने उन्हें क्या बताती कि उनका बाप अपने ही बेटे की बीवी पर नजर रखे हुए है। मैंने कहा कि आप शादी करवा दे, मैं आपके बाप और माँ दोनों को संभालूंगी। मेरी बात पर वो तंजिया मुस्कुराए थे। कहने लगे कि मेरे एक बाप की 2 रोटियां तुमसे पकाई नहीं जा रही, तुम मेरी सौतेली माँ को भी संभालोगी। देखो, ये घर, कारोबार, ये फैक्ट्री सब कुछ मेरे अब्बा के नाम है। अगर उनकी कोई बीवी की हैसियत से आ गई घर में, तो वो सब कुछ अपने कब्जे में कर लेगी, मुझे और तुम्हें धक्के मारकर निकाल देगी। अब्बा के गुस्से से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। जब गुस्से में आते हैं तो किसी का लिहाज नहीं करते। मैं चुपचाप उनकी सुनता हूँ। अब दोबारा से अब्बा की शादी का नाम मत लेना। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच में पड़ गई कि मैं क्या करूं। मैं अपने ससुर की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और मैके जाने का मतलब था कि मैं अपना घर बर्बाद कर बैठती। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं अपना घर बसाने के लिए, क्या कुछ हमें बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। अब मैं तलाक ले लेती तो दोबारा मेरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर मैं तलाक याफ्ता हो जाती तो मेरी छोटी बहनों के भी रिश्ते ना होते। मैं टप टप बहते आंसू अपने दुपट्टे से साफ करने लगी कि फौरन से अहमद की आवाज आ गई। कहने लगे, फारिया, बाहर आओ जल्दी से, आमलेट और पराठे बनाकर दो, अब्बा को बाजार का खाना हजम नहीं होता। मैंने बाहर आकर आमलेट और पराठे बनाए और कमरे में आ गई। मैंने उस रात खाना भी नहीं खाया, लेकिन अहमद ने एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि तुम भी पूरे दिन की भूखी हो, खाना खा लो। मर्द कभी भी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। अहमद का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में होता था। मैंने उसके बाद अपने लब बंद कर लिए। अहमद जब फैक्ट्री चले गए तो मेरा ससुर मुझे आवाजें देने लगा। मैं बड़ी मजबूरी और बेबसी से उनके कमरे तक गई। मुझे देखकर वो तमस्कराना हंसने लगा। तुम क्या समझती थी तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे बेटे के सर पर चढ़ गया होगा और तुम्हारी खातिर वो मुझे छोड़ देगा, मुझसे अलग होकर तुम्हें एक अलग घर लेकर देगा? अपनी सोच को बदल लो तो बेहतर है। मैंने उसके पर अच्छी तरह से काट रखे हैं। वो चाहकर भी कहीं नहीं जा सकता और ना ही तुम जा सकती हो। मैंने इसलिए किसी अमीर घराने की लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं की कि कहीं वो मेरे बेटे को उड़ा कर न ले जाए। इसलिए तुम्हें लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे बाप के हालात ऐसे नहीं हैं कि वो तुम्हारा घर बसाने के बाद दोबारा से तुम्हें अपने घर बिठा सके या अलहदा से कोई घर दिला सके। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो तो तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगा। मैं बहुत परेशान होकर रह गई थी। कहने लगा, जाओ जाकर मेरे लिए दूध लेकर आओ। ये लफ्ज मेरे अंदर आग लगा देता था। मेरा जी चाहा कि पेट्रोल डालूं खुद पर और अपने आप को आग लगा लूं। ऐसी तस्दीक मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अब यही करती थी कि खाने पीने की चीजें अपने ससुर के कमरे में पहुंचाकर फौरन बाहर आ जाती थी। ना उसके पास बैठती, ना बात करती थी। ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे ससुर ने तो अहमद का भी लिहाज नहीं किया। रात को खाना खा रहे थे। मैंने अपने ससुर की फरमाइश पर गोश्त की बिरयानी बनाई थी। बिरयानी बनी भी बहुत अच्छी थी। खाना खाते हुए कहने लगे कि आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत मजे का खाना बनाया है। अहमद यह सुनकर मुस्कुराने लगा। मुझे तो शक्कर भरी नजरों से देखने लगा, लेकिन मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई। फिर जेब से मेरे ससुर ने 5,000 का नोट निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगे, ये तुम्हारा इनाम है, इससे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरा इनकार करना था कि अहमद मुझे घूरने लगा। कहने लगा, अपनी खुशी से दे रहे ना, इनकार नहीं करते, रख लो।
पैसे ना चाहते हुए भी मैंने 5,000 का नोट पकड़ लिया। मैं बर्तन उठाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, मेरा ससुर भी खड़ा हो गया, मेरी तरफ बढ़कर मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरी माथे पर बोसा भी दिया। मैं तो यूं थी कि जैसे पत्थर का मुजस्समा बन गई। कहने लगे, मैं तुम्हारे बदले हुए रवैये पर बहुत खुश हूँ, ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लोगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। मैं अहमर को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भी तासरात नहीं थे, लेकिन मुझे ये चीज बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि ये अब्बू का कौन सा तरीका है? मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ, उनको चाहिए मुझसे फासले से बात किया करें। उनका क्या हक बनता है मुझे अपने साथ लगाएं? अल्लाह ताला ने तो एक उम्र के बाद बाप और बेटी का भी फासला रखने के लिए कहा है, और माँ बेटे का भी। मेरी इस बात पर अहमद भड़क उठे। कहने लगे, तुम इतनी छोटी सोच की मालिक हो सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा बाप तुम्हें अपनी बेटी समझता है। क्या हो गया जो उन्होंने तुम्हें जरा सा साथ लगा लिया, तुम्हारे सर पर प्यार कर लिया? अजीब लड़की हो तुम। बजाय इसके कि अब्बा के दिल में जगह बनाओ, तुम हर बात पर एतराज करती हो। वो धीमे लहजे में मुझ पर हैरान होकर बोल रहा था। कहने लगा, शुक्र करो अब्बा ने ये बातें नहीं सुननी, वरना मजीद मुसीबत बढ़ जाती। मेरे सर पर फिर उंगली उठाकर मुझे तंबीह करने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ फारिया, अपना रवैया अब्बा से ठीक रखा करो। मैं रोने लगी। मैंने कहा, अहमद, मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। ऐसा करो, मुझे जहर ला के दे दो या अपने अब्बा की शादी करवा दो। ये कहकर मैं कमरे में चली गई। कुछ देर बाद ही बाहर की डोर बेल बजी, फिर बाहर शोर की आवाजें आने लगी। मैं कमरे में बाहर आई तो मुझे पता चला कि मेरा एक देवर भी है जो दुबई में तालीम हासिल करने गया था और अब वो वापस आ चुका है, वो भी अपनी बीवी के साथ। मेरे देवर ने वहीं शादी की। मेरा ससुर उससे नाराज था, इसलिए उसे घर आने की इजाजत नहीं थी, और ना ही इस बात का इल्म मेरे घर वालों को था कि अहमद का कोई और भी भाई है। इन दोनों मियाँ बीवी को देखकर मैं हैरान थी। मेरे ससुर भी गुस्से में खड़े थे। कहने लगे, अगर अपनी मर्जी से शादी की थी तो फिर इसे वापस क्यों लाए हो? वहीं रहते वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। फिर अहमद ने भी कहा कि अब्बा जाने दे, जो होना था वो हो चुका है, इमरान को गले लगा ले। बहरहाल अब मेरी देवरानी भी आ चुकी थी। काफी खूबसूरत सी दुबली पतली सी लड़की थी। मैंने भी शुक्र किया था कि अब मैं घर में अकेली नहीं हूँ। खुश मजाज और बातूनी किस्म की लड़की थी, मेरे साथ घुल मिल गई थी। इमरान भी अहमद के साथ फैक्ट्री जाने लगा था। मेरे ससुर की तवज्जो मुझसे हटकर अब मेरी देवरानी की जानिब मबजूल हो गई। एक रात खाने के दौरान मेरे ससुर कहने लगे, अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। इमरान भी यह सुनकर मुस्कुराने लगा। लेकिन चंद दिन गुजरे थे। एक बार मेरी देवरानी अनीला जब ससुर के कमरे से बाहर आई तो बड़ी ही बदहवास थी, बार बार अपने चेहरे का पसीना पहुंच रही थी। मैं समझ सकती थी कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है। किचन में आकर वो चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? कहने लगी, मुझे अब्बा की आदतें बड़ी अजीब लगती हैं। अजीब नजरों से देखते हैं, अजीब तरह की बातें करते हैं, जिन्हें सुनकर मेरे कानों की लू तक सुर्ख हो जाती हैं। कहने लगी, मैं तो इमरान से बात करूंगी। वो तो कहते थे कि उसके अब्बा बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो बात बात पर अपने करीब करते हैं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी गले लगा लेते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, ये दोनों भाई कभी भी अपने बाप की बात नहीं टालेंगे। वो कहने लगी, लेकिन मैं तो इमरान से साफ कह दूंगी, अगर अब्बा ने यही रवैया रखा तो मैं उसे कह दूंगी कि अलग घर लेकर दे। वही फसाद फिर से बरपा हुआ जो कि मेरे और अहमद के बीच हो चुका था। इमरान कहने लगा, तो मैं तुम्हारे साथ 3 साल बैरून मुल्क में अकेला रह चुका हूँ। अब मेरे घर पर तुम क्या आई हो? 4 दिन अब्बा को रोटी बनाकर क्या देनी पड़ी? तुमने एक नया हंगामा शुरू कर दिया। मैंने कहा, अहमद, आप अब भी यही कहेंगे कि मैं गलत थी? जो शिकायत मुझे अब्बा से थी आज वही अनीला को भी है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं अब तो अब्बा गलत है। मैं आपसे सच कह रही हूँ, उन्हें एक बीवी की जरूरत है। बेशक उनकी उम्र 70 साल है। आपको तो चाहिए था कि अपनी वालदा की वफात के कुछ अरसे बाद ही उनकी शादी करवा देते, ताकि वो हमें सच में बेटियां समझते। मेरी बात शायद अब अहमद की अकल में आई थी। एक बार उन्होंने अब्बा से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो वो नाराज हो गए। कहने लगे, मैं इस उम्र में शादी करूं? क्या तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? तो अहमद ने कहा, एक बेवा औरत है, अगर आप इसे सहारा देंगे तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। वो औरत भी 50-55 साल की है। पहले तो उन्होंने बहुत नखरे दिखाए, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद ही खुद ही कहने लगे कि ठीक है, मैं इससे निकाह कर लेता हूँ। चंद दिन में ही मेरे ससुर का निकाह हो गया और इससे फर्क ये पड़ा
कि घर का माहौल काफी हद तक बेहतर हो चुका था। अब अहमद मुझसे खुद कहते थे कि तुमने ठीक किया है, अब्बा को एक बीवी की ही जरूरत थी। मेरी नई सास ससुर का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। अब मेरे ससुर की नजरें भी हम पर नहीं उठती थी। वो हमारे माशरे में ये चीज बहुत आम हो गई है कि अगर बाप की उम्र ज्यादा हो जाए तो औलाद उन्हें दूसरी शादी नहीं करने देती और एक महाज खड़ा कर लेती है, जिसकी वजह से ऐसी मुश्किलात का सामना आने वाली बहुओं को करना पड़ता है, जैसा कि मुझे और अनीला को करना पड़ा था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।